Yes, next question, beta. Pranay Chadda, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, beta. Answer. Ma'am, first, Second. ma'am, I don't know the answer of second. I have raised hand for first one. Okay. Anyone who knows the answer for second one, first one, so Himani has already told. Ma'am, the answer is nitrogen dioxide. Yes, nitrogen dioxide. Brown colored gas evolved when lead nitrate crystals are heated is NO2, nitrogen dioxide. Can anyone tell the Ex- exact? Excuse me, मैम. Yes, Lavanya. मैम जो ऑक्सीजन गैस है उसका क्या कलर होता है? Colorless. हमारे ओके एनवायरमेंट मैम. ऑक्सीजन है, हमारी एयर का कोई कलर तो है नहीं. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, these are colorless gases. Brown colored gas is nitrogen dioxide. So very important hint for this question that two gases are evolving actually. One is colorless and other one is brown color. And smell होती है इसकी बहुत sharp pungent smell, nitrogen dioxide. Can anyone write equation? Who can tell equation for this heating of lead nitrate crystals? मैम 2 PbNO3 twice. Yes. On decomposing it gives 2 Pb मतलब lead oxide plus 4 molecules of nitrogen dioxide plus O2 gas. Yes. CnO3 whole twice. I'm writing here. PbO plus NO2 plus O2. बैलेंस करने के लिए आपको इसको 2 PbO नाइट्रोजन, बेटा आपके पास देखो 2 वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के बाहर भी 2 है और इधर ओवरऑल भी 2 है, तो टोटल 4 नाइट्रोजन है, तो 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड टोटल ऑक्सीजन यू कैन कैलकुलेट. Oxygen 3 to the 6 and 2 12. Total oxygen here 2 plus 4 to the 8 and 2 10 and 2 12. So this is now your balanced equation in this way. And this brown color gas is nitrogen dioxide. Next question number 3. Beta, those who have raised hands for previous questions, they can lower their hands. Only those students will raise hand who know the answer for the next question. Yes, Archana. Ma'am, exothermic. या गुड. एक चीज बेटा ये माइंड में रखनी है आपने कि अदरवाइज डिकम्पोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट नेचुरल डिकम्पोजिशन जो वेजिटेबल मेन्योर का है, वेजिटेबल वेस्ट का मेन्योर या कंपोस्ट में कन्वर्जन है, उसमें कुछ अमाउंट में हीट साथ में इवॉल्व होती है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक. तो याद रखना आपने, कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं डीकम्पोजिशन देख के. डीकम्पोजिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, लाइक जैसे आप किसी भी चीज को हीट करके उसके लेड नाइट्रेट को हीट किया, फेरस सल्फेट को हीट किया, तो दैट आर मेन्योर में ना अपने आप नेचुरल जो प्रोसेस है, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक वन. क्वेश्चन नंबर 4. Manmeet Kaur, beta, mute yourself. Some disturbance is side. Manmeet. Decomposition is opposite to combination.
Yes, Kavya Kaushal. Kavya beta, unmute yourself. Yes, ma'am. In decomposition reaction, a single substance decomposes to form more substance, and in combination reaction, two or more substance combine to form a single substance. Yeah, good. Basically, decomposition is a chemical process in which some complex or large molecules break down into simpler substances. मतलब कोई ऐसा substance जो थोड़ा complex होगा, that will break down into two or more simpler substances. Whereas in combination, simpler substances combine to form complex ones. This is the basic thing. तो ये opposite है एक दूसरे के. Because decomposition में हम कुछ like एक एग्जांपल आप कर सकते हो, वाटर डिकम्पोजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, whereas हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर. सेम रिएक्शन का दोनों डायरेक्शन में आप एग्जांपल यूज कर सकते. State one basic difference between exothermic and endothermic reaction. Sushant. Ma'am, in Beta, you are not audible. Just mute yourself. Some network issues are there from your side. Isha Sharma. And exothermic reaction is a reaction in which reaction, hello. Yes. heat is absorbed in exothermic reaction, heat is exit in the chemical. Sushant beta, your network issues are there. You just mute yourself. Isha beta, tell answer. Yes, ma'am. The exothermic is a reaction in which heat is released in the form of energy, whereas in endothermic reaction, uh, heat is absorbed from the surroundings. Yeah. Any equation in reaction in which heat is absorbed during chemical reaction, that process is known as endothermic. और अगर heat evolve होती है, then it is exothermic. और temperature की form में अगर हम बात करें तो after reaction, the temperature of container or the reaction mixture gets increased in an exothermic process, whereas temperature gets decreased. मतलब चीजें ठंडी हो जाएंगी अपने आप अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको कैसे पता लगेगा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? कंटेनर विल गेट हीटेड अप, whereas in endothermic process container will become cooled down. Yes, next question. What is green vitriol? Give its chemical formula. Yes, Parneet Kaur, roll number 43. Yes, ma'am. Question number 6, beta. Green vitriol is crystalline ferrous sulfate. Yes. Formula. Its chemical formula is FeSO4. Complete formula. Its formula is FeSO4. Dot X O. This is the complete formula. Not 7H2. Sorry, 7. X I have written for rust.
7H2. So this is 7H2. अगर आप नहीं लिख रहे हो तब ये green vitriol नहीं होता. In that case, it is only known as ferrous sulfate. ठीक है? 7 water molecule इसमें present होते हैं. Then they give its green color. तो green color के crystals ferrous sulfate के जो अगर आप chemical formula पूछा जाता है, it is FeSO4.7H2. Yes, question number 7. Yes, Drig. Answer. Excuse me, ma'am. Yes. मैम ये 7H2O क्यों है? बेटा ये इसके साथ हमेशा मतलब कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उनके क्रिस्टल्स के अंदर, तो उनके फॉर्मूला का पार्ट ही होते हैं वो. जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O. These type of salts are called hydrated salts. जब आप इनको हीट करते हो तो पहले ये वाटर मॉलिक्यूल ही वो लूज करते हैं और उसके बाद उनका कलर जो है, जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन से व्हाइट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये डिकम्पोज होगा. फर्स्ट स्टेप में ये सिर्फ वाटर लूज करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन. विदाउट इसके अगर आप लिखते हो तो वो ग्रीन विट्रियोल नहीं है, दैट इज ओनली फेरस सल्फेट. यस ग्रेट. Excuse me, ma'am. यस आशीष. Ma'am, is green vitriol and ferrous sulfate same? You can say same. फेरस सल्फेट अदरवाइज एग्जिस्ट इसी फॉर्मेट में करता है. जब तक आप उसको हीट नहीं करते हो तब तक वो 7H2O लूज नहीं होते. मतलब when you heat green vitriol, it loses 7H2O and converts into white colored salt, which is known as ferrous sulfate. But otherwise normally ferrous sulfate, अगर आपसे फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पूछा जाता तो आप सिर्फ FeSO4 ही कहोगे, क्योंकि उसको आपको कंपल्सरी नहीं है बताना कि उसमें वाटर साथ में है या नहीं, कि वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. बट ग्रीन विट्रियोल एग्जिस्ट ओनली इन दिस फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म. तभी इस कलर की वजह से उसका नेम ग्रीन है. मतलब अगर वाटर नहीं होगा तो वो व्हाइट कलर का होगा. Yes, who was giving answer for question 7? Ma'am. Yes, wait. Zinc liberates hydrogen gas when reacts with HCl because zinc is more reactive than the hydrogen in the present in HCl. Therefore, it displaces it, and hydrogen gas is liberated, and zinc chloride is formed. Whereas copper is less reactive than hydrogen, therefore it doesn't displace it. Yes, good. Basically, the difference is of reactivity of metals. Zinc, sodium, potassium, magnesium, these are quite reactive metals, aluminium. So they react with acids to release hydrogen gas. Whereas those metals which lie below hydrogen metal activity series like silver, copper, mercury, gold, platinum, these metals do not react with acids to release hydrogen. So reason is their reactivity only. Question number 8. Aluminium is a reactive metal but is still used for packing food articles. Aluminium quite reactive metal है, but still हम उसको food articles की packaging में use करते हैं. Can anyone tell? It's a question chapter में नहीं है, but still metals non metal chapter से ज़्यादा important है ये. But otherwise एक चीज याद रखनी है इसके लिए आपको बेटा, कुछ metals ऐसे होते हैं जिनके लिए corrosion जो है वो useful होता है. तो aluminium is one of them. ये एल्यूमिनियम ऐसा मेटल है जो क्वाइट रिएक्टिव है और इंस्टेंट अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर स्टिक हो जाती है और उसको एक तरह का प्रोटेक्शन देती है. फर्दर एल्यूमिनियम खराब नहीं होगा. मोर ओवर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फूड आर्टिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो दिस इज द रीजन दैट एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर packing food articles. The layer of aluminium oxide. Excuse me, ma'am. Stick over. Yes. मैम वो फिर फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता?
नहीं करता. एल्यूमिनियम अदरवाइज कर सकता है रिएक्ट, कई सौर सब्सटेंसेस के साथ, मेटल है तो एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, बट जब एल्यूमिनियम इंस्टेंटली अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एंड वो लेयर उस पर स्टिक हो जाती है, उतरती नहीं है, एंड दैट लेयर प्रिवेंट्स द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद फूड आर्टिकल्स. दैट इज व्हाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू फॉर्म वेरियस कैन भी बनते हैं. लिक्विड फूड आइटम्स को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम कैन यूज होते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज टू पैक फूड आर्टिकल्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चंस हैं आपको. उसमें assertion एंड रीजन दो ऑप्शंस हैं, दो स्टेटमेंट हैं. आपको स्टेटमेंट रीड करके ये 5 ऑप्शंस हैं आपके पास. ए अगर दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, तो आपने ए सिलेक्ट करना है. अदरवाइज बी. एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा. लास्ट क्वेश्चन का मतलब रीजन क्या था? बिकॉज एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होगी, फिर उससे ये होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर स्टिक हो जाती है सरफेस पे एल्यूमिनियम के, एंड विच प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद फूड आर्टिकल. Yes, question number 9. मालविका बेटा. मैम मैम रीड भी करना क्वेश्चन. आप आंसर बता दो. मैम both reason and assertion are true, and reason is the correct explanation of assertion. करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, वो दैट इज ओके, बट रीजन क्या दे रहे हैं? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. रीजन अपने आप में करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, बट वो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना किसी भी केमिकल रिएक्शन को. वो एक जनरल सा assertion है, ये केमिकल Okay, ma'am. फिजिकल और केमिकल स्टेट को चेंज करती है. तो रीजन क्या होगा कि केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल बॉन्ड्स हैं न्यू बनते हैं, पुराने टूटते हैं, कुछ ऐसा जनरल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए. रीजन इज एक्सप्लेनिंग ओनली अबाउट द Okay, ma'am. ऑफ वाटर. क्लियर बेटा? तो कौन सा होगा ऑप्शन? नाउ कैन यू सेलेक्ट Yes. व्हिच वन? Yes. If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. गुड. तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं पढ़ने में. दोनों स्टेटमेंट ठीक लगती हैं, बट फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, तभी आपने ए सेलेक्ट करना होता है. अदरवाइज फिर देखो बाकी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. आशीष. Ma'am, A option, assertion and reason are true, and reason is correct explanation of assertion. Question is, in a balanced chemical equation, total mass of each element towards reactant side is equal to total mass of the same element towards product side. Mass can neither be created nor be destroyed. Yes, correct. Next is question number 11. Yes, who will tell? 11th.
महक मीट कौर. Yes, ma'am. Ma'am, assertion is true, but reason is false. Decomposition takes place on. हाँ ठीक है, मतलब दोनों अदरवाइज नहीं, रीजन इज फॉल्स. आप ऑप्शन, मतलब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ. विच ऑप्शन विल यू सेलेक्ट? रीजन स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है. 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं, आपको बी पार्ट इज द करेक्ट. बोथ assertion. Yes, ma'am. If both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. बिकॉज वहां पर वो डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन तो कर ही रहा है कि डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक क्यों है. बिकॉज कि वो एप्लीकेशन ऑफ हीट या कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हो इसलिए एंडोथर्मिक है. तो ये अपने आप में ट्रू है स्टेटमेंट. वन भी ट्रू है, बट बोथ आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग ईच अदर. दैट इज व्हाई बी पार्ट विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. मैम why, excuse me मैम, ये explain तो कर रहा है. बेटा ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? Assertion is when calcium carbonate is heated, it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. Uh, the uh, the decomposition reaction takes place on application of heat. Therefore, it is an endothermic reaction. एक्चुअली करेक्ट आधा स्टेटमेंट तो कवर कर रहा है, बट आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्वेश्चन इज नॉट अबाउट देयरफॉर. क्वेश्चन है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड डिकम्पोजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो अगर ये इतना ही होता, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, देन इट इज करेक्ट. बट अदरवाइज ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है ही है. Therefore it is an endothermic. मैं सिर्फ इसी स्टेटमेंट की वजह से इसको बोली थी कि ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट द हाफ स्टेटमेंट इज explaining that. Otherwise in exam you will not get that much confusing questions. ठीक है, कर सकते हो. चलो इसको ठीक है. ये एंडोथर्मिक वाली लाइन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इतना ही होता कि अगर when we heat a substance it breaks down into simpler one या कुछ इतना ही होता, तो that would be sufficient. Excuse me, ma'am. Yes. मैम पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये तो लाइट के एप्लीकेशन से भी कई बार हो जाते हैं, हाँ, तो कई तरह से हो मैम जाता है ना. इसीलिए फॉल्स मैं वो नहीं एक हो. नहीं, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला है हीटिंग से ही हो रहा है ना, तो इसलिए उसकी स्टेटमेंट तो ये हाफ वाली तो उसको करेक्टली कर ही रहा है. ठीक है ना. इसलिए वो जो आधी लाइन बाद में ऐड की है ना, देयरफॉर इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इसकी वजह से ये मैंने आपको बोला कि इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है ना. यू नो दैट हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों से ही हो सकता है, और भी किसी भी तरह से आप एनर्जी प्रोवाइड करके किसी भी चीज को तोड़ रहे हो, न्यूक्लियर एनर्जी से भी, तब भी वो डिकम्पोजिशन तो एंडोथर्मिक ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. बस वही 5-6 स्टूडेंट्स होते हैं जो हैंड रेज करते हैं. देविशी बेटा, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? 56 students were there initially, अभी 44 है. Yes, देविशी. Ma'am, assertion is true, but reason is false. Yeah, this increases the taste of it, तो quite easy है कि कोई टेस्ट के लिए एनहांसमेंट के लिए नहीं डाल रहे हैं. नाइट्रोजन prevents the chips from getting oxidized. Excuse me, ma'am. Yes. मैम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी. हीट प्रोड्यूस नहीं होती बेटा डिकम्पोजिशन. हीट या कोई भी एनर्जी देनी पड़ती है आपको, तभी वो एंडोथर्मिक होती है. बट मैम जैसे यहाँ 11th में रीजन में लिखा है देयरफॉर इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो मैम ये रीजन ट्रू थोड़ी है. नहीं, तभी मैंने कहा था दिस इज नॉट ट्रू. ओके मैम. Drig was confused, तब मैंने उसको बोला कि कर सकते हो, बट अदरवाइज इट्स नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग.
ये सिर्फ हाफ सेंटेंस करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है. Decomposition reaction takes place on application of heat. पर फिर भी वो पूरा आपको वो नहीं मतलब करेक्ट कर रहा एक्सप्लेन, इसलिए बेटर है कि उसको ना ही सेलेक्ट करो. अगर आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल रही है देन ओनली यू नीड टू सेलेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. Effect of rusting of iron can be reversed if they are left open in air, in sunlight. Divya beta. Ma'am, good morning, ma'am. Assertion is true, reason is false. Assertion is true, but the reason is false. Yeah, beta. Okay. Correct. Next MCQ. Yes, someone else. कितने बच्चे हैं बेटा? सिर्फ वही 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं. What about others? विक्रांत वर्मा, जगतेश्वर, वंशदीप, नमित. Jagteshwar, answer this question number 14. Name and state the law which is kept in mind while we balance a chemical equation. Options are there in front of you. Tell. Jagteshwar, unmute yourself. Are you there? You are attending classes, but you are not attentive. Preet Kaur, 10th read. Preet Kaur. Nobody is there, but your name is there in the list. Excuse me, ma'am. Yes. मैम आप इस पीडीएफ को एक बार ग्रुप में शेयर कर दोगे? बेटा वैसे मैंने जनरल सी एक है ग्रुप में, चलो कर दूंगी अदरवाइज. Yes, which law is there? Law of conservation of mass. Second one, what is breaking and making of bond in chemical reaction called? Actually, this question is chemical reaction ही कहते हैं इसको, chemical process भी कहते हैं. Breaking and making of chemical bonds in a process is called a chemical reaction. Next, a reddish brown gas is released along with oxygen and lead oxide on heating lead nitrate. It is an example of Lead dioxide. yes, example of decomposition. But आपको options में से answer देना है. Yes, now अब यहाँ पे बेटा आपको ये balance करके answer बताना है.
Unmute yourself, anyone. Third option. अभी मैंने check नहीं किया. Ma'am, D option. Ma'am, third option. Ma'am, A option. नहीं आता ना बेटा. 0 cannot be used. 1 रहेगा. तो एक मिनट करनी पड़ेगी ना. 2 ferrous 2 and then oxygen 3. Here it is 1 4 2. ये ऑप्शन भी गड़बड़ है सारे, मुझे लग रहा है.